So this is what we are going to discuss today. So we are just going to see today that which things we need to perform into natural language processing, what are different projects that we can do in NLPs, and what are the problems we are facing into NLP, and which models we can use to uh, uh, which tasks we need to perform in natural language processing project. So first of all, we are going to discuss about applications in natural language processing. And as sir told you on Sunday, that he told that right now there are many requirements in NLP related projects. Okay, so that is why these applications are very important to know over here. So we'll discuss about that applications over here. Then after that, the NLP, some kind of what are the problems that is been faced, the problems that are being faced by NLP projects or NLP systems that we are going to discuss about. And then after that, we are going to discuss what kind of pre-processing is required, pre-processing of data, because this is very important. तो ये क्यों important है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. So why pre-processing of data is required. So that we are going to discuss, and then after that, at the last, we are going to discuss about the models, basically the models used in NLP. Used in NLP. So basically आपका ये आंसर हो सकता है कि सर मॉडल्स मतलब we are using RNN for this. I'm not talking about RNN. Yes, RNNs are used for NLP, but uh, models used for NLP matlab it is the models that are used to convert your text data into numeric data. So that kind of models I'm talking about. So that models are like bag of words model, then word to wake model, word to wake model. So likewise word embedding is there, then BERT is there. So kind of models we are going to discuss about. So that are specific to your NLPs, that are very specific to your NLPs. So before starting with NLP, we must know what are different applications or what are different projects going on in the natural language processing. So can you tell me some project, if you know, can you tell me some projects or applications of natural language processing? Okay, so yeah, so smartbot, that is about chatbots, specifically chatbots. Yeah, yeah. Yes, Jay. Okay. Yes. Huh. Huh, 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 huh. Huh, 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 huh. Yes. Yes, yes, yes. That is right. So I think almost all of the applications he has covered. But let me show you some applications that we can just search on the internet. So NLP best projects we can search for. So इसको कुछ so NLP project idea as a customer support bot. सो आई थिंक अभी जो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको इंश्योरेंस परचेस करना है, तो इफ यू जस्ट गो ऑन द इंटरनेट, उसका जो वेबसाइट है अगर उस पे जाते हैं, तो व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू सी इज दैट वहां पे एक नीचे लिखा होता है यहाँ पे, सो क्लिक टू लाइव चैट। तो वहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, अगर ऐसा वैसा। सो इफ आई जस्ट आस्क की व्हाट वुड बी माय लाइक uh, price of my insurance, so that kind of question I can ask. So on the basis of our question it is going to answer you. Okay, so we think that it is going to be some person at their end,
but that is not the case now. पहले ऐसा होता था बहुत पुराने जमाने में, बट पुराने जमाने में 10-15 years ago. But now, if you are doing live chat, means you are chatting with the bot. Bot means it is the term used for automated thing. Okay, so अगर कुछ automated thing है, that is called as a bot. So automated chat generation होता है उस side पे, server side. So that bot is communicating with us. Okay, so that is what your customer support bot is. Then after that, yeah, so then a language identifier key, if you are just uh, like writing something, so it is just going to detect the language, so in which language you are writing. So ये आपका गूगल ट्रांसलेटर में भी है, अगर आप कुछ टाइप करते हो तो इट जस्ट डिटेक्ट कि ये आपने हिंदी में लिखा है या मराठी में लिखा है. लेट मी जस्ट शो यू. सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने इंग्लिश लिखा है, सो ये आप इंग्लिश मराठी में कन्वर्ट करना है ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यस, जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर लाइक हिंदी टेक्स्ट. सो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कहा हो आप. सो यस, यहाँ पे देखो उसने उसने डिटेक्ट किया कि ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, translate from Hindi. So इसका मतलब it has detected what you are typed, that is which language it belongs to. Okay, so that is what that project is. And ML powered auto complete feature. अभी ये ML powered auto complete feature ये आपको दिखाई देगा while writing an email. अगर आप ईमेल्स अगर पिछले 1-2 साल में अगर आपने ईमेल्स भेजे तो आपको पता होगा कि अगर आप लिखते हैं कि लाइक थैंक्स फॉर, तो आपको आगे का जो है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू योर ईमेल, ये आगे के वर्ड्स आपको सजेस्ट करेगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन, दैट इज ओके. एज वेल एज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, इट इज आल्सो जस्ट गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए. ओके, that is like a predictive text generator, so that is what Jay said. Okay, so a media monitor, that is also going to be there. So many projects are there, you can just see. Kaggle पे भी आपको बहुत सारे projects मिल जाएंगे. Basically you'll get like very nice data sets from the Kaggle. तो Kaggle पे ओके, communities questions answers शायद यहाँ पे मिल जाए. नहीं, ये क्या हुआ. ओके, NLP projects. ओके, सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रिलेटेड विद द NLP. सो डोंट वरी अबाउट द प्रोजेक्ट. सो वी आर गोइंग टू डू लाइक प्रोजेक्ट with respect to each and every model. So yeah, so this is about NLP applications we are talking about. Okay, so let's go ahead now. So I hope you understand what are the applications of natural language processing. ये जो आप ये बेसिकली अगर बोलेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक जब व्हेन जे वाज गिविंग आंसर, सो उस टाइम पे उसने बोला कि गूगल का एलेक्सा, सॉरी अमेजोन का एलेक्सा, गूगल का गूगल असिस्टेंट इज देयर. सो गूगल असिस्टेंट इज देयर. देन आफ्टर दैट एप्पल का सीरी इज देयर. सो ये जो है ना, ये इफ यू सी, these are kind of your personal assistants. So Alexa का आपने काफी बार ऐड देखा होगा on the TV. तो इसमें कैसे कि वी कैन जस्ट आस्क एनीथिंग टू द अलेक्सा, तो हम जो भी कुछ बोले उसके हिसाब से अलेक्सा सेट करता है. अगर आपके पास इफ यू आर यूजिंग लाइक एंड्रॉइड फोन्स, तो आप भी बोल सकते हो कि ओके गूगल जस्ट सेट मी जस्ट सेट एन अलार्म फॉर मी टुमारो 6 in the morning. या तो अगर आप एप्पल यूज करते हो, आईफोन यूज करते हो या तो आईपैड यूज करते हो, तो यू कैन जस्ट आस्क hey Siri, just set me an alarm for tomorrow morning 6 a.m. Okay, so yes. Okay, so basically my Siri got uh,
एक्टिवेटेड, ओके। जब मैं आपको बता रहा था तो मोबाइल फोन साथ में, तो he just got activated Siri. So this is very nice like applications of NLPs we can say. So जो भी हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से it is just going to work for you. तो अभी जब मैंने बोला ना, सो सीरी के बारे में, सो अगर दोबारा बोलोगे फिर से अलार्म सेट कर देगा, तो ही हैज जस्ट सेट एन अलार्म फॉर मी टुमारो 6 in the morning. सो जब मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे ही जस्ट गॉट एक्टिवेटेड एंड इसने सेट कर दिया अलार्म. सो दैट इज वेरी नाइस फीचर वी कैन जस्ट से. एज वेल एज इट कैन जस्ट, मतलब बहुत सारे कमांड्स होते हैं दैट यू कैन जस्ट गिव थ्रू जस्ट लाइक योर ओरल लैंग्वेज. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, बट ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा step by step जाएंगे. So we are just going to do some projects in NLP so that we'll get understand everything over here. So this is about the project. So I hope you understand the project and the scope of this domain over here, because every single like corporate is starting their own chatbots. They are starting their own projects related with this NLP. So it is irrespective of your IT companies, जहाँ पे आप communicate करना चाहते हो, everywhere in governments also. So they are launching their own chatbots. So like there is huge scope in this field NLP. Now there are some problems. Not, this is not a problem basically that has been overcome. Still we have some problem we can say. So what is the problem in NLP is that, so what I'm saying that with respect to computer vision, एनएलपी में एक प्रॉब्लम आपको हमेशा आएगा. कंप्यूटर विजन में वो प्रॉब्लम कभी नहीं आया. कंप्यूटर विजन इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड वी कैन से, सो इसलिए हमने कंप्यूटर विजन रिलेटेड टास्क देखे. बट एनएलपी में विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर विजन एक चीज आपको ज्यादा करनी पड़ती है. सो कैन यू टेल मी व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इन एनएलपी? बिकॉज कंप्यूटर विजन में एक चीज आपको रेडीमेड अवेलेबल है, एनएलपी में दैट इज नॉट अवेलेबल. In computer vision, what is your input is, in computer vision most of the time your input is images. अगर वीडियो उसके भी हम फ्रेम्स लेके उसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं. इन एनएलपी व्हाट इज योर इनपुट इज, योर इनपुट इज टेक्स्ट. व्हाट वी कैन से इट एज, सो ये टेक्स्ट होता है, दैट इज एन इनपुट टू एनएलपी. And for both in both the applications we are building machine learning models. So this is what your ML model is, machine learning model. तो ये जो मॉडल है, if it works with computer vision, तो इसको जो इनपुट जाता है that is what we provide that images. लेकिन अगर ये आपका एनएलपी मॉडल है, इफ इट इज द एनएलपी मॉडल, सो इसको जो इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर टेक्स्ट डेटा वी कैन से. So basically the problem is that ये जो ML model है, this ML model understands numeric data, so that we all know that numeric data. So it understands numeric data. So जो भी आज तक हमने प्रोजेक्ट किए उसमें अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट वी हैव कन्वर्टेड, मतलब अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट कॉलम है, इफ यू रिमेम्बर इनटू इफ यू रिमेम्बर इन टाइटैनिक प्रोजेक्ट और हाउस प्राइस प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने क्या किया था, फीचर एनकोडिंग किया. एंड बाय डूइंग फीचर एनकोडिंग, जो भी आपका जेंडर वगैरह ऐसे जो कॉलम थे, मतलब मेल एंड फीमेल लिखे हुए कॉलम, सो दैट वी आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक डेटा, सो दैट योर एमएल मॉडल इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. सो वहां पे तो दो एक एक 10-20% कॉलम्स आपके टेक्स्ट कॉलम थे, उनको आपने एनकोडिंग से आपको न्यूमेरिक डेटा में उसने उसको कन्वर्ट किया आपने. But in NLP project, your all data is in the form of text. आपका पूरा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो जो डेटा है ये आपको न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. सो पहले इसको आप न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करो, एंड देन दिस न्यूमेरिक डेटा कुड बी अंडरस्टैंड बाय योर एमएल मॉडल. सो ये टास्क बहुत बड़ा टास्क है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका पूरा accuracy and how your NLP or how your NLP engine is going to perform. Okay, so in general NLP जो प्रोजेक्ट मॉडल होता है उसको NLP इंजन भी बोला जाता है.
सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक कि आपका जो एनएलपी का जो टेक्स्ट डेटा है, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिक डेटा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनएलपी। कंप्यूटर विजन में वो चीज नहीं है। कंप्यूटर विजन में क्या है कि आपका इनपुट इमेज है, बट इमेज मींस अल्टीमेटली दे आर पिक्सेल्स, एंड पिक्सेल्स मींस अल्टीमेटली दैट वैल्यूज आर बिटवीन 0 to 255. So ultimately, in computer vision, whatever the input we are getting, that is by default in numeric form. That is by default in numeric form. So ये चीज वहां पे कंप्यूटर विजन में आपको वो प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं। बट इफ वी जस्ट वांट टू इम्प्लीमेंट योर सिस्टम्स विद एनएलपी, तो आपको वो चीज करने की जरूरत है। आपको ये जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू नंबर्स, so that is very important. So that is what the problem. So let me just write down here. The problem is exactly to convert your text data to numeric data. And let me tell you, ये जो मैंने आपको मॉडल्स बताया ना, मॉडल्स यूज इन एनएलपी, दैट इज बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड टू वेक, ये जो वर्ड है, दैट आर यूज टू कन्वर्ट दिस थिंग। सो इसके लिए ये मॉडल्स यूज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दैट आर वेरी स्पेसिफिक टू एनएलपी। दैट इज व्हाई दे आर वेरी स्पेसिफिक टू एनएलपी। ये आपको कहाँ पे बाकी जगह पे नहीं यूज किए हुए दिखेंगे। सो दीज मॉडल्स एंड बेसिकली ये जो मॉडल्स है यहाँ पे, अगर इसको मैंने मॉडल्स बताया बिकॉज अल्टीमेटली समवेयर वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग algorithms and kind of stuff we are using into this concept, so that is why we are calling it as a models. तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विथ एनएलपी, एंड दैट इज व्हाई एनएलपी में ये चीज आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एन, बाकी का चीज जो भी मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह बनाना, दैट इज सेम। जो भी बाकी का चीज है मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह बनाना, दैट इज सेम। ओके, so so this is very important thing we need to understand. So that is why we are going to discuss in this series of lecture of NLP, that is what is bag of words model, what is word to wake model, and what is BERT model, that kind of stuff. And yes, so yes, then also we need to go for pre-processing of data. अभी प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा मतलब आप बोलोगे सर टेक्स्ट टू न्यूमेरिक डेटा तो आपने कन्वर्ट कर दिया, what kind of special, and this is with respect to NLP, हाँ, मतलब ये NLP में होता है। इट इज नॉट लाइक आपका जो प्री प्रोसेसिंग होता है, स्केलिंग, then after that encoding so that pre-processing I am not considering, because that you already know, and वो in general machine learning projects में आप use करते हो। I am just specifically discussing about what kind of pre-processing we have to do with NLP related data. So NLP का जो input data है, that is text data. तो text data के related जो भी pre-processing है जो अभी तक हमें पता नहीं, that we are going to discuss, and then after that we are going to discuss about models used in NLP. To understand each and every model, we are going to do one project with respect to this. Okay, so that we'll understand this each and every model in detail. So yes, so I hope you understand the applications of NLP, the problems nahi, problem with respect to the NLP. And this I hope you understand this, because we are not going to like touch to this point number 1 and 2 again. Lekin yes, obviously we are going to see this point number 3 and point number 4 in detail. So let's go and discuss about pre-processing. What kind of pre-processing of data is needed in NLP? So some terms we are going to discuss over pre-processing uh, of text information in NLP. So NLP में कौन सा जो text information है, ये आपको कैसे pre-process करना है, that we are going to discuss about. Now फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टेक्स्ट ले लो, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च फॉर एनी टेक्स्ट। मतलब जैसे अभी जय ने बोला कि वी हैव द डेटा सेट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज बीन जनरेटेड बाय द शेक्सपियर। शेक्सपियर का हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज बीन कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट इन इंग्लिश, because he was like a great what we can say, त्याला आपण मराठी साहित्यिक म्हणतो, so that is that he was in English. तो उसका काफी ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल है, सो दैट इज व्हाट। सो अगर वो भी टेक्स्ट आप देखोगे तो
वहां पे आपको दिखाई देगा कि देर आर सम स्पेशल सिंबल्स, और नॉट स्पेशल सिंबल्स but a punctuation special symbol that we need to handle. So first of all we need to see how to handling of like special symbols, or we can say punctuations, so kind of stuff. So that is what we are going to do first. अभी आप बोलोगे सर ये स्पेशल सिंबल मतलब उनका कुछ तो मीनिंग होगा, पंक्चुएशन से उनका मीनिंग होगा. यस, यस, दे हैव देयर ओन मीनिंग. पंक्चुएशन तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन देखो ये पंक्चुएशन यूज करना है नहीं करना, ये डिपेंड होता है on the domain of your project, on the domain, or domain means the scope, let me call it, not domain, it is not the right word, the scope of your project, scope of your project, it depends on your scope of project. Basically let's consider जैसे जैसे जय ने बोला कि हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी इजी. सो सेंटिमेंट एनालिसिस, सो ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें पंक्चुएशंस हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन. बिकॉज सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए आपको पंक्चुएशंस की तो जरूरत ही नहीं है. सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यू नीड ओनली वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स दैट इज गोइंग टू डिसाइड सेंटिमेंट. मतलब अगर अगर रेस्टोरेंट रिव्यूज का प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट रिव्यूज, तो रेस्टोरेंट रिव्यूज में सेंटिमेंट एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू दैट. तो ये जो रेस्टोरेंट रिव्यूज का सेंटिमेंट एनालिसिस है, उसमें अगर आप रिव्यू देते हो कि फूड वाज गुड, फूड वाज गुड, तो इसमें इसका सेंटिमेंट क्या है? पॉजिटिव सेंटिमेंट. सेंटिमेंट मतलब क्या कि ये रिव्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, दैट इज व्हाट द सेंटिमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट रिव्यूज. तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये फूड की वर्ड से वजह से ज्यादा पॉजिटिव है, वाज की वजह से ज्यादा पॉजिटिव है, कि गुड की वजह से ज्यादा पॉजिटिव है? तो ये गुड की वजह से पॉजिटिव हम यहाँ पे बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज द वर्ड दैट इज डिफाइनिंग स्पेसिफिकली इट इज पॉजिटिव रिव्यू. एंड दैट इज व्हाई वर्ड्स इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटिमेंट एनालिसिस, ना कि आपकी पंक्चुएशन इंफॉर्मेशन. पंक्चुएशन इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल important for sentiment analysis. Likewise, like special symbols are also not going to be helpful in like sentiment analysis. तो लाइकवाइज अगर आपका कोई टेक्स्ट ऐसा है कि जो रेस्टोरेंट रिव्यू ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्माइलीज दिए उन्होंने, सो जनरली पीपल गिव स्माइलीज, शुड वाज गुड. सो ये एक ट्रेंड है, ये ऐसे रिव्यूज लिखने का. सो बेसिकली कैन आई से दैट ये जो भी आपके पास अभी रिव्यू है, सो इस रिव्यू में से द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू जस्ट हाईलाइट ओवर हियर राइट नाउ. सो इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका सेंटेंस का, दैट इज ओनली दिस, एंड दैट इज ओनली दिस. सो इसका मतलब वी नीड टू रिमूव some part we need to remove some part of your review that is not actually the text. तो उस केस में we remove this dots also, we remove this exclamation marks, because they doesn't affect your sentiment. They are not going to contribute to the sentiment of your review. So only simply food was good ऐसे बोला तभी भी चलता है. Likewise, if I just write another review like this, like food was good, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं. Can I say that both reviews are same, exactly same? बोथ रिव्यूज आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. सिर्फ क्या किया है इसने, कैप्स में यूज किए, ये जो कैरेक्टर्स है दैट ही हैज यूज इन कैप्स. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बिल्ड द मॉडल. सो प्री प्रोसेसिंग में हमने तो पहले किया कि रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स, रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स, ये तो हमने कर दिया. लाइकवाइज सेकेंड थिंग, ये यहाँ पे हमने कर दिया. सेकेंड थिंग, ये जो भी रिव्यू हम प्रोसेसिंग के लिए लेने वाले सारे लोअर केस में लेके करेंगे हम. सो लोअरिंग डाउन द टेक्स्ट, लोअरिंग डाउन द टेक्स्ट, लोअरिंग डाउन मतलब लोअर केस में आपका टेक्स्ट जो है ना,
ये कन्वर्ट करना है, लोअरिंग डाउन द टेक्स्ट, बिकॉज ये गुड मतलब इट इज वर्ड स्पेसिफिक। सो अगर ये वर्ड अगर हमने देखा तो दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो द सेम वर्ड, so this should not be considered as two different words as your ML model। जब भी आप मॉडल ML मॉडल बनाओगे तो उस ML मॉडल के लिए ऐसा गुड होगा लिखा हुआ स्मॉल्स में या तो कैप्स में लिखा होगा, दोनों का तो मीनिंग सेम है, तो दोनों सेम लगने चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ providing this directly to your ML model, what we provide, it's lower form we provide, food was good। जब प्रेडिक्शन के लिए यूज करेंगे तभी भी जो भी आपको आपका रिव्यू होगा वो लोअर करके हम उसको प्रेडिक्शन के लिए बेच देंगे, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। सो ये इट माइट लाइक आपका जो भी आस्की वैल्यूज है दैट आर केस सेंसिटिव, एंड दैट इज व्हाई जो ऊपर वाला गुड है नीचे वाला गुड है दैट कुड बी कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट वर्ड्स, सो दैट वी डोंट वांट, एंड दैट इज व्हाई ये सेकंड स्टेप आपको करना है। नाउ नेक्स्ट इज कि बेसिकली कैसे कि ये बेसिकली लेट मी जस्ट टेल यू द रिव्यू, लाइक एक ऐसा रिव्यू है कि loved the food, ओके, एंड दूसरा एक रिव्यू है आई लव इट, मतलब इट मतलब फूड आई एम टॉकिंग अबाउट। कैन आई से दैट if you just compare these two statements as a restaurant reviews, can I say that both statements are exactly same, both statements are exactly same। एंड अगर हम वर्ड स्पेसिफिक बोलेंगे तो ये जो रिव्यू है इस रिव्यू में द इम्पोर्टेंट वर्ड इज loved, एंड इस रिव्यू में द इम्पोर्टेंट वर्ड इज okay। So in this first review the important word is loved, and in this word in this review the important word is love। So basically on the basis of this word basically we are going to say that it is the positive review, it is the positive review। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो वर्ड है दैट इज लव्ड एंड दैट इज लव, बोथ हैव द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा पास्ट में है, ये इट इज लाइक अ प्रेजेंट पार्टिसिपेंट। सो यस दैट कुड बी, बट बेसिकली अगर वर्ड स्पेसिफिक आपका मॉडल है लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस तो उस केस में ये दोनों एज अ डिफरेंट वर्ड्स नहीं ट्रीट होने चाहिए, दे शुड नॉट बी कंसिडर एज अ टू डिफरेंट वर्ड्स। अभी इसमें एक बड़ा रीजन हमें जो मुझे आपको बताना है, सो ये मैं आपको बताऊंगा एट द टाइम ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, कि ये जो दो जो वर्ड्स है ना वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। सो दैट इसको हम क्या कर देंगे, विल जस्ट कन्वर्ट दिस वर्ड इनटू इट्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब इसका जो बेस वर्ड है, लव का बेस वर्ड है लव, एंड इसका भी बेस वर्ड ऑब्वियसली लव का लव ही रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल दूसरा वर्ड है हमारा हैप्पीली, हैप्पीली, एंड दूसरा एक वर्ड है हैप्पी। तो इसका बेस वर्ड क्या है, दैट इज गोइंग टू बी हैप्पी, एंड इसका भी बेस वर्ड क्या है, हैप्पी इट इज गोइंग टू बी। सो ये आप स्मॉल में हैप्पी कंसीडर कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपका जो जो अनदर फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, मतलब बेसिकली वी जस्ट यूज फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स टू रिप्रेजेंट आवर इमोशंस, बट यस जब भी हम मॉडल बिल्ड करेंगे लाइक फॉर योर सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये जो वर्ड्स है उसका हमें बेस वर्ड कंसिडर करना पड़ता है फॉर योर मशीन लर्निंग मॉडल। सो ये जो बेस वर्ड लेने का जो टेक्निक है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज स्टेमिंग। स्टेमिंग, सो स्टेमिंग, लेट मी जस्ट कॉल इट एज स्टेमिंग। सो जिसमें हमें बेस वर्ड मिलता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्टेमिंग। तो कोई भी वर्ड ले लो, आपने नाइसली लिया, नाइसली, सो नाइसली मतलब इसका बेस वर्ड क्या है, नाइस। So that process is called as a stemming. That process is called as a stemming. Okay. इसके साथ और भी कुछ वर्ड्स है। सो लेट्स कंसीडर कि आपके आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें एक वर्ड आया दैट इज न्यू
York. Now, whenever machine learning model is going to consider this one, like New York, तो ये machine learning model क्या करेगा, इस new word को अलग से treat करेगा, इस York को अलग से treat करेगा. But basically, if you know, तो New York is the city in USA. सो बेसिकली ये आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है, ये आपको एक साथ ट्रीट करना है. लेकिन जब जब यूजर आपका एंटर करेगा न्यूयॉर्क इन इन इट्स टेक्स्ट, तो वो तो ऐसा नहीं लिखेगा ना कि ये न्यूयॉर्क, ऐसे नहीं लिखेगा ना. सो अगर ऐसे लिखते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि दे आर रिलेटेड. लेकिन ये न्यूयॉर्क इन जनरल वर्ड बना है, दैट इज लाइक इन जनरल वर्ड. सो जनरली वी डोंट मेंशन हाइपन. तो as a human being we understand that this new is the part of city name, is the part of city name. So to handle this problem, we are having the concept that is called as a lemmatization. That is called as a lemmatization. So basically, we are having two terms over here that is that are new to you. So that is stemming and lemmatization. Okay, so basically lemmatization, yes, if we are, if it is required, then we'll do it in the future projects. Right now in this project, that means sentiment analysis वाला सबसे पहले करेंगे. It is like a hello word in NLP. तो ये जो प्रोजेक्ट करेंगे, सो इसमें ओनली स्टेमिंग वी आर गोइंग टू यूज ओवर देयर, ओनली स्टेमिंग वी आर गोइंग टू यूज ओवर देयर. Okay, so these are some pre-processing steps we need to do. So this is what about some pre-processing of data. कुछ चीजें अगर मिस हो रही तो that will cover later on. Basically I am just looking this particular thing from sentiment analysis project perspective. तो आई थिंक मैंने आपको ये किया भी था, मतलब ये जो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल है ये इम्प्लीमेंट भी किया था पहले भी. वी आर जस्ट गोइंग टू रिवॉच दैट थिंग. सो आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियोस. आई थिंक आपको वीडियोस मैंने शेयर किए थे इन द वेरी बिगिनिंग, जब मशीन लर्निंग कंप्लीट हुआ था तब. आई होप यू रिमेम्बर दैट. तो उस टाइम पे ये सेंटिमेंट एनालिसिस वाला यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, ये प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी मैंने वहां पे बता दिया है बाय बाय शेयरिंग द वीडियोस. तो वही अभी करने वाला है. सो आई होप यू रिमेम्बर दैट. कितने लोगों को पता है वो, या तो कितने लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं. इट इज नॉट लाइक कि आपने देखा है, देखना ही चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने नहीं देखे तो लेट मी जस्ट गो थ्रू इन वेरी माइन्यूट लेवल डिटेल्स. सो कैन यू टेल मी कितने लोगों ने किया था वहां पे, देखे थे वो वीडियोस. ओ मतलब उस टाइम पे मैंने जो भी सारे वीडियोस दी दी आपको, सो ये हंट सीन दैट वीडियोस. इसका मतलब उस टाइम पे मैंने आपको काफी वीडियोस भेजे थे विथ रिस्पेक्ट टू डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो. सो आई थिंक आपने वो नहीं देखे, तो इसका मतलब जो भी मैंने वीडियो देखे आपने वो कुछ भी नहीं देखे. तो जो भी बाकी के लोग हैं उसके बारे में आपके मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके, सो ऐसा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट इज नॉट अ स्कूल, लेट मी टेल यू. सो ये आपको आपकी खुद की तरफ से आना चाहिए. तो इफ आई एम सेंडिंग समथिंग टू यू, एटलीस्ट अभी इसको 2 महीने हुए होंगे शायद, तो वो वीडियो मैंने आपको भेजे, तो सो ये आपने देखने चाहिए. ओके, सो लेट्स गो विद द डिटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो जो भी प्रोजेक्ट अभी हम पहले करने वाले हैं, सो ये ये प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा वी डिस्कस अबाउट. लेट्स डिस्कस अबाउट मॉडल्स यूज्ड इन एनएलपी. सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल फर्स्ट. ओके, सो अभी जो बैग ऑफ वर्ड्स ऑफ मॉडल्स के लिए मैं प्रोजेक्ट यूज करने वाला, दैट इज सेंटिमेंट एनालिसिस. वी आर गोइंग टू यूज सेंटिमेंट एनालिसिस. सो दैट प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू डू यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल. So let me tell you what is sentiment analysis using bag of words. Sentiment analysis using bag of words. Bag of words using bag of words. ओके, सो ये प्रोजेक्ट हम करने वाले. टू डू दिस प्रोजेक्ट, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस वो हम करने वाले फ्रॉम रेस्टोरेंट रिव्यूज. रेस्टोरेंट रिव्यूज.
सो ये जो रेस्टोरेंट रिव्यूज है ये स्टैंडर्ड डेटा सेट है दैट इज अवेलेबल ऑन Kaggle also. तो इन दिस रेस्टोरेंट रिव्यूज द लेबल डेटा सेट वी आर हैविंग, सो इसमें 1000 रिव्यूज ऑलरेडी है उन्होंने दिए हुए, एंड जो भी 1000 रिव्यूज है उनके सेंटिमेंट भी दिए हैं। सेंटिमेंट मतलब वहां पे दो कॉलम्स है, एक कॉलम है रिव्यू नाम का, एक कॉलम है इसमें लोगों ने जो रिव्यूज लिखे हैं वो उन्होंने दिए, सो ऐसे 1000 रिव्यूज है। एंड दूसरा कॉलम है दैट इज लाइक्ड, सो लाइक नाम का कॉलम है, तो ये कॉलम बताते हैं कि इस रिव्यू के हिसाब से उनको ये रेस्टोरेंट या तो खाना पसंद आया कि नहीं आया। सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कॉलम सेज। तो ये आपका, इसको हम बोलेंगे लेबल्ड डेटा, दैट इज व्हाट लेबल्ड डेटा। अभी देखो, जस्ट जस्ट थिंक रियलिस्टिकली, हमारा एक रेस्टोरेंट है एंड हमारे रेस्टोरेंट में जो भी लोग आते हैं वो रिव्यूज आपके इंटरनेट पे रिव्यूज डालते हैं या तो जाते टाइम पे दे जस्ट गिव अस द फीडबैक। तो उन्होंने जो फीडबैक, ये हर एक का हम फीडबैक मतलब वी विल लाइक, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है हमारा या तो बहुत बड़ा होटल है, तो हर एक का रिव्यू पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम क्या करेंगे कि आज अगर 1000 कस्टमर्स ने विजिट किया है तो उसमें से कितने कस्टमर्स ने हमारा जो रेस्टोरेंट है उनको पसंद आया या तो खाना है जो पसंद आया कि नहीं आया। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो भी लोग रिव्यूज दे रहे हैं ना ऑनलाइन या तो क्या आपके रेस्टोरेंट में जो भी फीडबैक दे रहे हैं उसको हम डायरेक्टली पास करेंगे टू योर मशीन लर्निंग मॉडल, एंड योर मशीन लर्निंग मॉडल इज गोइंग टू प्रेडिक्ट वेदर दैट पर्टिकुलर रिव्यू इज पॉजिटिव और नॉट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर वाई कॉलम एंड this is going to be your x, that is input. X means input we are talking about, so input मतलब ये पूरा जो रिव्यू है that is going to be like an input, and ये जो भी 1 है या तो जो भी 0 है that is going to be an output. So इसलिए ये जो दो कॉलम है ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्स एंड वाई, या तो ये लेबल डेटा आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वंस वंस योर मशीन लर्निंग मॉडल अंडरस्टैंड कि कैसे रिव्यूज वन पॉजिटिव होते हैं, कौन से रिव्यूज और कैसे वर्ड्स आपके नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। सो यस, सो as per the words into the reviews, जो भी रिव्यूज में वर्ड लिखे उसके हिसाब से इट आइडेंटिफाइज कि ये पॉजिटिव रिव्यू है कि नेगेटिव रिव्यूज है। पॉजिटिव, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया इन प्री प्रोसेसिंग, हैंडलिंग ऑफ स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद में सेकंड चीज होते हैं रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। अभी अभी मुझे ध्यान में आया, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। ये रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स मीन्स अगर आपका रिव्यू ऐसे है, द फूड was good, the food was good, so basically यहाँ पे the important word is good and food, लेकिन ये जो the word है या तो was है, so that is not important for us to find out whether this review is positive or not, and that is why we are going to remove the such kind of words. इसको हम बोलते हैं stop words, इसको हम बोलते हैं stop words, so that we are going to remove. so ये जो stop words है इसमें काफी एग्जांपल है, and है, we है, you है, ऐसे ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम योर ओरिजिनल टेक्स्ट, बिकॉज इसके ऊपर आपका रिव्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रिमूव स्टॉप वर्ड, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर प्री प्रोसेसिंग। सो ये मैंने स्किप कर दिया था, सो अभी ध्यान आया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू डू, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, I hope you understand what we are going to do right now. Let me just show you the data. So मैं आपको अभी डेटा दिखाता हूँ। So data is restaurant reviews data. Yes, so this is what the data is. So अगर मैंने इसको open किया तो WordPad, let me just open that into. Yes, so ये आपका डेटा है, it is TSV file. So अगर आपने properly observe किया होगा, so this is what your TSV file is. TSV मतलब tab separated values.
TSV मतलब टैब, जैसे कॉमा सेपरेटेड होता है ना, वैसे टैब सेपरेटेड। आप देख सकते हैं ये पहला वर्ड है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ड यूज इन टैब, सो इट इज द टैब। ये जो भी अभी हाईलाइटेड है दैट इज योर टैब इज। वैसे ये आपका रिव्यू है, एंड उसके बाद में ये जो है दैट इज व्हाट द टैब इज। तो टैब देके 1 है, यहाँ पे टैब देके 0 है, यहाँ पे टैब देके 0। इसका मतलब टैब इज यूज एज सेपरेटेड बिटवीन टू कॉलम्स, टैब इज यूज एज सेपरेटेड बिटवीन टू कॉलम्स। सो ये जो डेटा है दैट वी आर गोइंग टू read into your Jupyter notebook. So on the other hand, let me just start the Jupyter notebook. So yes, so we are having only two columns. तो पहले columns में आपको reviews मिलेंगे, this is what the name of first column and this is what the name of second column. तो ये जो पहला column है, second column है, so only two columns we are having. Second column is going to contain only ones and zeros because it is what your y is. लेकिन पहला column में इसमें reviews आप देख सकते हैं, wow, love this place. Then second review में है crust is not good. थर्ड में है नॉट टेस्टी एंड द टेक्सचर वाज जस्ट नास्टी, स्टॉप बाय ड्यूरिंग द लेट मे बैंक हॉलिडे ऑफ एक्सटिव रिकमेंडेशन एंड लव्ड इट, ओके व्हाटएवर इट इज। सो दीज आर जस्ट द रिव्यूज दैट वी कैन जस्ट सी ओवर हियर, अ ग्रेट टच। तो ये जो है ना, ये आपके पॉजिटिव रिव्यूज है। द फ्राइज वेयर ग्रेट टू, so this is what your positive and that is why this is what one is, that is why it is one. So ये मैन्युअली लेबल डेटा होता है, जब आपको डेटा सेट क्रिएट करना है तो मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता है। वंस यू क्रिएट दिस डेटा, उसके बाद में जो मशीन लर्निंग मॉडल है दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो देखने के लिए। let me just sorry, let me just read that file into our Jupyter notebook. So let me just go into this and okay, let me create a new notebook. I'm just going to call it as NLP sentiment analysis. NLP restaurant reviews, let me call it as restaurant reviews analysis. So that is what the name of file. And let me just import pandas first. So import pandas. If you want, you can just do it on Colab also, no problem. Import pandas as PD. Let me do. सो डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड। अभी इसको रीड करने के लिए टीएसवी फाइल को रीड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सीएसवी फंक्शन ओनली, रीड सीएसवी यही फंक्शन यूज करेंगे। सिर्फ इस फंक्शन को बताएंगे कि जो भी सेपरेटेड है वो कॉमन नहीं है, वो क्या है, वो टैब है। सो वो इसको हम एक्सप्लिसिटली बताएंगे। सो आई होप यू रिमेम्बर वेयर इज दैट डेटा इज। सो दैट डेटा इज, ये जो DSML4 है ना उसके पीछे जाएंगे हम, एंड पीछे जाने के बाद आई थिंक यस VIT मशीन इंटेलिजेंस, इसमें जाएंगे हम। ओके, सो ये जाके हम इसके अंदर इससे ये डेटा रीड करने वाला है। सो हाउ टू डू दैट इनटू लाइक हियर। सो हमें क्या करना पड़ेगा पहले, राइट नाउ वी आर इनटू DSML4। तो पहले हम पैरेंट को जाएंगे। सो लेट मी जस्ट गो टू द पैरेंट। पैरेंट में जाने के बाद फिर से वहां पे वी आर हैविंग yes, so that is what your yes, and इसके अंदर restaurant reviews डॉट TSV। so this is how we are going to, अभी एक एक कोलन यहाँ पे ज्यादा आ गया, कोट सॉरी। एंड इसका जो सेपरेटर है दैट वी नीड टू मेंशन, सेपरेटर इज इक्वल टू /t। separator is slash, by default separator होता है कॉमा, and that is why it works for CSV files directly। वहां पे सेपरेटर मेंशन करने की जरूरत नहीं। लेट मी जस्ट शो यू, या आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है ना वो होता है कॉमा। तो इसलिए हम नहीं लिखते कॉमा, तभी भी चलता है फॉर CSV फाइल, लेकिन TSV फाइल के यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो दो कॉलम्स के बीच में जो सेपरेटर है वो है टैब। सो लेट मी जस्ट डू एग्जीक्यूट दिस। अभी आप देख सकते हैं df head। तो यहाँ पे you can just see these are the two columns we are having।
सो पहला कॉलम में रिव्यू होगा एंड नेक्स्ट कॉलम लाइक नाम का जो कॉलम है इसमें वो रिव्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट इज बीन रिटन ओवर हियर। नाउ ये जो डेटा है, इस डेटा में विल सी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल डू प्री प्रोसेसिंग ओवर हियर, विल डू प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग। सो प्री प्रोसेसिंग में विच स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो? पहली बात, वी आर गोइंग टू remove unwanted characters। वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स। अभी अनवांटेड कैरेक्टर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 डॉट्स से, that are unnecessary, that is not going to make my review positive or negative, so that is not necessary for me. This dot is also not necessary for me because it is simply a restaurant review, so this punctuations are also not necessary। यहाँ पे भी काफी सारे डॉट्स वगैरह है, so that is not necessary, like क्वेश्चन मार्क है या तो कुछ भी है, so that we are not going to consider right now in this project। So removing unwanted characters we are going to do, then after that, once we remove unwanted characters, we are going to remove stop words, remove stop words, we are going to remove stop words। तो स्टॉप वर्ड्स भी हम रिमूव करेंगे। ये जो भी टेक्स्ट है इसमें से, अगर फॉर एग्जांपल ये है वाओ लव्ड दिस प्लेस, सो इसमें से ये जो दिस वर्ड है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हाँ, ये आगे जाके बाकी के प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइक जैसे ऑटोमेटेड टेक्स्ट जनरेशन, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। लेकिन अभी का जो रेस्टोरेंट रिव्यूज का जो प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट, दिस वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें रिमूव अनवांटेड कैरेक्टर्स, उसके बाद में हमें और एक चीज करना पड़ेगा कि जब हम रिमूव करेंगे स्टॉप वर्ड्स, वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ एनएलटीके। सो एनएलटीके में we can just look for the stop words, क्योंकि हमें हम we cannot list all the stop words in our project, so we are just going to take help of NLTK। NLTK is one of the library that is used for pre-processing of data in natural language processing। तो जैसे जैसे pandas है, वैसे NLTK एक library है that is going to help us for pre-processing of data in natural language processing। Okay, so वो तो वहां पे करेंगे, so that is why it is going to be a third part। Second part we are going to do is like convert to lowercase, convert all text to lowercase, convert whole text to lowercase, convert whole text to lowercase। then after that remove stop words। उसके बाद में next thing we are going to do, जो भी stop words है वो हमने remove कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का जो भी बेसिक वर्ड है दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। सो स्टॉप्ड का बेसिक वर्ड है स्टॉप। ओके, सो दैट बेसिक वर्ड वी आर गोइंग टू, यहाँ पे देख सकते हैं लव्ड, तो उसका बेसिक मीनिंग मतलब बेसिक जो वर्ड है, बेसिक वर्ड दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर प्रेडिक्शन पर्पस, सो दैट इज LOVE, दैट इज लव। सो दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज अ स्टेमिंग। सो उसके बाद में हम करेंगे स्टेमिंग, then after that we are going to do stemming, and once we do all this pre-processing over here, so ये पूरा pre-processing करने के बाद we are going to build our bag of words model। तो पहले ये pre-processing करते हैं, and let me do this pre-processing on single review। So let me just consider this very first review as a text, so let me call it as a review। So review is equal to, now can you tell me how we can select this first review? We can select this first review use from the data frame। सिर्फ ये जो भी हाईलाइटेड है ये रिव्यू मुझे चाहिए इनटू रिव्यू नाम के स्ट्रिंग में। यस, कैसे करेंगे? डेटा फ्रेम से ये मुझे सिर्फ पहला एंट्री चाहिए, एंड पहले कॉलम का पहला एंट्री चाहिए अल्टीमेटली। ओके, सो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो या
df of review comma 0, will it work? Do you really think it is going to work? Because see, it works for numpy arrays, such kind of things. So let me just show you what it is going to do here. That is key error, and it will say that review comma comma 0, that key is not available. तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ये डेटा फ्रेम का पहला रो सिलेक्ट करते। तो पहला रो सिलेक्ट करने के लिए df, व्हाट वी कैन डू, पहला रो सिलेक्ट करने के लिए df डॉट रिव्यू ऑफ 0, यस दैट इज एग्जैक्टली इट कुड वर्क। सो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, df डॉट रिव्यू, जो जय ने बोला वो मैं आपको दिखाता हूँ, ऑफ 0। ये जो df डॉट रिव्यू है ना, दिस इज the column that we have selected. ये जो column है ना, the single column is always series object, and उस series object का मुझे 0 index select करना है. So this is simply like that. So it will also work. So I will just show you many ways to do this. तो आप देख सकते हैं review आपको मिल गया. Likewise, या तो आपको ये से करना है using column names, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ dot ilog. तो 0 इंडेक्स का आपको चूज करना है, 0 इंडेक्स का, एंड 0 इंडेक्स का आपको रिव्यू चूज करना है। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू। सो उस केस में भी इट इज गोइंग टू वर्क। सो सिंपली यू कैन जस्ट यूज योर ओन लॉजिक टू गेट दिस आउट। तो रिव्यू में तो आपको मिल गया, दैट इज वाओ, लव दिस प्लेस। yes, ilog or location also works. Okay. Okay, so let me just go here now. इसके ऊपर पहले हम remove unwanted characters. Can you tell me how we can remove this unwanted character? Unwanted characters remove करना मतलब keep only alphabets. Only keep alphabets. Only keep alphabets. बाकी के सारे remove करना है. So for that purpose, I'm just going to let you know about one very very good technique that we call it as uh, regular expressions, we call it as. So regular, let me import regular expressions, so RE. So those who are from computer science background, उनको रेगुलर एक्सप्रेशंस पता होंगे इन टीओसी या तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपने देखा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस, व्हाट दे डज इट इज सिंपली लाइक योर ग्रेप कमांड इन लिनक्स। मतलब ये पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, उस पैटर्न को ये रिप्लेस करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे पैटर्न क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास नॉन अल्फाबेट आता है, नॉन अल्फाबेट मतलब देखो ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नॉन अल्फाबेट आता है तो लाइक डॉट 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 जैसे, तो इसको रिप्लेस करो बाय सम लाइक बाय सम स्पेस वगैरह ऐसे कुछ, तो हम इससे रिप्लेस कर देंगे। सो दैट सिर्फ वाओ लव दिस प्लेस, सिर्फ यही बाकी बचेगा, ये डॉट्स आर गोइंग टू बी रिमूव। सो सिंपली वी आर गोइंग टू कीप ओनली लाइक ये डेटा, only alphabetical data we are going to keep over here. So how we can do that? So regular expression को ले use करने के लिए, so re dot, उसमें substitute नाम का एक मेथड होता है, substitute. So ये आप देख सकते हैं। तो पहले आपको क्या देना है, पैटर्न जो आपको डिटेक्ट करना है, वो पैटर्न को आपको किससे रिप्लेस करना है, जो भी आपको जो भी स्ट्रिंग से आपको रिप्लेस करना है वो थिंग। सो काउंट एंड फ्लैग्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज राइट नाउ। सो ये जो तीन चीजें, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले पैटर्न, उसको किससे रिप्लेस करेंगे, एंड स्ट्रिंग। सो पैटर्न जो हम डिटेक्ट करेंगे, सो रेगुलर एक्सप्रेशंस में वी जस्ट डिफाइन पैटर्न एज अ स्ट्रिंग पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है, इफ आई विल जस्ट शो यू दैट। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन, सो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ हाउ इट वर्क। सो रेगेक्स, इसको रेगेक्स बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस इन शॉर्ट। सो इंपोर्ट आ रही एंड ये एग्जांपल दिए हाउ इट वर्क्स। सो ये सर्चिंग के लिए भी यूज किया जाता है। बेसिकली इट वर्क्स ऑन पैटर्न मैचिंग, इट वर्क्स ऑन पैटर्न मैचिंग। सो ये जो भी कैरेक्टर्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी हाईलाइटेड कैरेक्टर, सो दिस इज यूज एज अ नॉट कैरेक्टर, लाइक ये एंड्स विथ या तो स्टार्ट्स विथ, ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस आउट।
अभी मुझे क्या करना है कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स छोड़ के बाकी के कैरेक्टर्स अलाउ करने हैं। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स वी डिफाइन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो लेट मी जस्ट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट नाउ। सो लेट मी जस्ट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज किए, इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है ए टू स्मॉल जी या तो कैपिटल ए टू कैपिटल जी। दिस इज हाउ वी मेंशन द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये हम ऐसे मेंशन करते हैं, इसका मतलब स्मॉल लेटर्स एंड इसका मतलब है कैपिटल लेटर्स। तो मुझे इनको छोड़ के बाकी का मुझे प्रेडिक्ट करना है, इनको छोड़ के मुझे बाकी का प्रेडिक्ट करना है। तो यू कैन जस्ट सी हियर, अगर आपको नॉट ऑपरेशन करना है या तो इट इज नॉट स्टार्ट विद, इट इज नॉट ऑपरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम सेट ये जो कैरेक्टर है ना, if you are using with set of characters, so it works as a not in, it works as a not in। okay, so basically ये not in ही बोलना चाहिए था उन्होंने, ठीक है, नो इश्यू। सो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल नहीं लिया। लेट मी जस्ट यूज डायरेक्टली ओवर हियर। तो मैं क्या करूंगा, लाइक नॉट इन दिस सेट। सो ये पैटर्न आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, मतलब एवरी सिंगल कैरेक्टर। सो फॉर एग्जांपल पहला कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर इस सेट में नहीं आता, मतलब पहला कैरेक्टर डब्लू, तो ये तो है ए टू कैपिटल जी में, तो इसलिए नॉट ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो जो भी कैरेक्टर इस सेट में नहीं है क्यों, बिकॉज दिस नॉट वी आर यूज। सो जो भी कैरेक्टर इस सेट में नहीं है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय some space kind of character, by some space kind of character। एंड ये जो है ये हम करने वाले फ्रॉम योर रिव्यू। सो रिव्यू के ऊपर अभी हम फिलहाल इसको यूज करते हैं। सो फ्रॉम रिव्यू वी आर गोइंग टू डू दैट। तो ये तीन इनपुट है, पैटर्न, योर सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग एंड योर ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, एंड इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इट्स आउटपुट इज गोइंग टू बी। सो आप देख सकते हैं जहां पे डॉट डॉट है वहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेसेस यहाँ पे ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे यू कैन जस्ट सी दीज आर अननेसेसरी स्पेसेस वी कैन कॉल इट एज, दीज आर अननेसेसरी स्पेसेस वी कैन कॉल इट एज। तो इसको हैंडल करने के लिए अगर आपने ये स्पेस के बजाय आपने अगर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस किया तो आपका जो ये वाला आउटपुट है इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो यस, सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉट है ये सिर्फ अल्फा नॉन अल्फाबेट नहीं है, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस दैट इज आल्सो नॉन अल्फाबेट, दैट विल बी आल्सो गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड दैट इज वाई सारे अटैच हो गए यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू गिव स्पेस ओवर हियर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आउटपुट। सो ये आपका पहला स्टेप है, दैट इज रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड होता है, ये यूज करने नहीं करने, दैट डिपेंड्स। दूसरा है कन्वर्ट होल टेक्स्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट होल टेक्स्ट टू लोअर केस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो रिव्यू है ना, लेट मी जस्ट कैच दैट इनटू रिव्यू। सो दैट इज रिव्यू इज इक्वल टू दिस। सो रिव्यू में कैच करूंगा एंड इसके बाद में लेट मी जस्ट शो यू रिव्यू। ये ओके, सो रिव्यू में ये इट विल बी जस्ट लाइक और राइट होगा ये। तो रिव्यू अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस रिव्यू होगा, लेकिन ये सारा ये आप देख सकते हैं इट इज इन कैप्स, इट इज इन कैप्स। सो ये मुझे लोअर में चाहिए, तो रिव्यू डॉट लोअर वी आर गोइंग टू डू, तो ये सारा लोअर केस में आ जाएगा। नाउ यू कैन जस्ट सी दिस इज इन लोअर, दिस इज आल्सो इन लोअर। तो ये टेम्पररी आउटपुट होता है। अगर आपने देखा, इफ यू रिमेंबर स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शंस है ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। सो ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये कभी नहीं चेंज करेंगे, सो ओरिजिनल स्ट्रिंग इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल रिव्यू में इट इज गोइंग टू बी अपडेटेड लाइक दिस। ओके, सो रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू डॉट लोअर। सो ये भी मैंने कर दिया। सो वो करने के बाद आप देख सकते हैं व्हाट इज द रिव्यू इज। सो दिस इज व्हाट द रिव्यू इज। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, ये जो रिव्यू है मतलब ये सेकंड स्टेप भी होगा। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव स्टॉप वर्ड्स। ऑब्वियसली रिमूव स्टॉप वर्ड्स के लिए आपको एनएलटीके लगेगा, लेकिन जब हम स्टॉप वर्ड्स रिमूव करेंगे तो हमें सिंगल एवरी सिंगल वर्ड वी आर गोइंग टू टेक इन कंसिडरेशन। सो वाई, सॉरी, वाओ, लव्ड, दिस प्लेस, बिकॉज दिस, देखो हमारे पास स्टॉप वर्ड्स का एक सेट है,
we are having one set of stop words. So let me just use that over here कि जो भी आपका stop words है उनका मैं आपको स्टेप क्या दिखाता हूँ, उसको हम बोलेंगे सेट भी मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये जो सेट है that is going to help us for checking whether given word is like stop word or not. तो what I'm going to do is हम क्या करेंगे, एक NLTK में we are having like stop words already implemented है, already implemented, या तो implemented नहीं बोल सकते, what we can say, लोगों ने ऑलरेडी काम किया है स्टॉप वर्ड्स के ऊपर एंड दैट दे हैव जस्ट केप्ट इनटू एनएलटीके. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द कॉर्पस फ्रॉम द एनएलटीके. कॉर्पस आपको काफी बार सुनने के लिए मिलेगा. सो फ्रॉम एनएलटीके डॉट कॉर्पस we are going to import stop words. We are going to import stop words. तो ये जो NLTK ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके पीसी में नहीं है. आई थिंक मेरे यहाँ पे होगा, ये काफी दिन पहले मैंने किया था. सो आई होप ये यहाँ पे होगा. स्टॉप वर्ड्स, सॉरी. सो इट इज बीन इम्पोर्टेड स्टॉप वर्ड्स. सो स्टॉप वर्ड्स अगर आपको देखने, हर एक लैंग्वेज के अलग से स्टॉप वर्ड्स होते हैं. सो स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, लेट मी कॉल इट एज. सो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स मुझे देखने हैं. So these are all stop words belongs to English language. तो आप देख सकते हैं काफी सारे स्टॉप वर्ड्स हैं. So this will be treated as stop words. This will be treated as stop words. So these all are your stop words. So इसमें से कोई वर्ड आता है तो आपको रिमूव करना है. किसमें से, आपके रिव्यू में से. सो आपके रिव्यू में से अगर इसमें से कोई वर्ड आता है तो यू आर गोइंग टू रिमूव. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वाव है ये स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इसमें है कि नहीं. दिस इज काइंड ऑफ द सेट. आई थिंक दिस इज द लिस्ट. दिस इज लिस्ट. ओके, सो यू कैन जस्ट सी क्लियरली सी दैट दिस इज द लिस्ट. तो अगर आपका वाव वर्ड इस लिस्ट में, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट फॉर प्रोसेसिंग पर्पज, फॉर द फर्दर प्रोसेस. लोड देखेंगे इसमें है कि नहीं, दिस है कि नहीं देखेंगे, प्लेस है कि नहीं देखेंगे. सो काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर. सो कैन यू टेल मी, अगर मुझे एक एक वर्ड देखना है इस स्टॉप वर्ड्स में, तो यूजिंग दिस स्ट्रिंग हाउ कैन आई हैव द सिंगल वर्ड सेपरेटली. इस स्ट्रिंग से मुझे हर एक वर्ड एज अ सेपरेट वर्ड चाहिए. Yes, that is yes. So using split. Your voice is not audible to me because of some problems with Google Meet basically. So you can just put the messages. तो तो ये जो है ना, इस रिव्यू को हम अभी क्या कर लेंगे, विल जस्ट अभी यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ सेल बिलो. तो ये जो रिव्यू है, इस रिव्यू को इस रिव्यू को हम करेंगे स्प्लिट. सो स्प्लिट अगर हम करते हैं तो यू कैन जस्ट सी द आउटपुट. wow, loved this place. So this is what the separate words, list of separate words we are having. एक ध्यान में रखना कि जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो जस्ट डोंट यूज स्पेस एट द स्प्लिट ओवर हियर. तो उस केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा ये आपको ऐसे मिलेगा. सो यू विल बी हैविंग दिस एज अ सेपरेट वर्ड्स. तो दैट वी डोंट वांट. मतलब ये मतलब क्या है, ये वाली चीज है, आप सॉरी ये वाला चीज है. So because of this extra spaces, you are going to get extra words over here. So don't use the space as a split parameter over here. Just use it as a none. So obviously it is going to not consider any spaces, and it will be just like you are going to have this exactly the output expected over here. अभी इसमें से हर एक वर्ड
हम चेक करेंगे कि ये स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश में है कि नहीं। तो इसके लिए we can just write a for loop. So like let me call it as like final words is equal to empty list. तो इसमें जो भी वर्ड्स आपके स्टॉप वर्ड्स नहीं है वो मैं फाइनल वर्ड्स में लेने वाला हूँ, फाइनल वर्ड्स। ओके, सो मैं क्या करूंगा, फॉर एवरी वर्ड in your review. So review का every word how we can have by using split. So ये आपको मिलेगा यहाँ पे लिस्ट। सो ये आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट है। तो फॉर एवरी वर्ड इन दिस लिस्ट ऑब्जेक्ट आपको चेक करना है कि if this word if this word is not in your like stop words. So stop words के लिए हम क्या लिखेंगे, stop words dot words of English. So अगर इसमें ये नहीं है तो we are just going to put that into final words. So final words dot append, एंड इसमें हम append कर देंगे आपका ये वाला वर्ड। ओके, तो तभी हम append करेंगे। सो यहाँ पे ये जो नॉट है ना, that must not be over here, it must be over here. So not word in stop words dot words. So ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में let me just show you the final words and this is what these are what your final words. तो इसमें से I think this कम हो गया, this, yes, so this ये आपका स्टॉप वर्ड है तो ये रिमूव होगा। सिर्फ बाकी के तीन जो वर्ड्स है दैट वी हैव जस्ट टुक ओवर हियर, दैट वी जस्ट गॉट ओवर हियर। सो इसके लिए आपको ये फॉर लूप लिखना पड़ा। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ दिस we can simply have the list compression concept. List compression से भी मैं कर सकता हूँ। Can you tell me how we can do it using list compression? Can you tell me how we can do it using list compression? देखो एवरी, अगर हम ऐसे फॉर लूप लिख रहे हैं ना दैट इटरेट्स ऑन द लिस्ट, तो उसके बजाय हम लिस्ट कॉम्प्रेशन यूज कर सकते हैं। दोज हु नो पाइथन वेरिएबल लिस्ट कॉम्प्रेशन वगैरह, तो आप वो यूज कर सकते हो। इफ यू नो यू कैन जस्ट टेल मी, अदरवाइज आई थिंक अगर नहीं पता है तो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो लिस्ट कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि ये जो भी होता है दिस फॉर लूप वी आर गोइंग टू यूज इट एज इट इज। सो so every word we are going to consider for word in review dot split. ओके, सो वर्ड फॉर वर्ड इन रिव्यू डॉट स्प्लिट। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपको डालना पड़ता है ये एक लाइन में डालना पड़ता है। सो इफ नॉट सॉरी इफ ये जो है कंडीशन ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी दैट ओवर हियर। तो जो भी अभी तक हमने किया है वही सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट अ लूप स्टेटमेंट ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू राइट द इफ स्टेटमेंट ओवर हियर। तो इसका मतलब ये होता है ये जो लिस्ट कॉम्प्रेशन है ये आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। सो इसका मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स where we are going to create list of words where every word in review dot split, and that we are going to consider every word in review dot split only if that word is not in, if that word is not in stop words dot words. So let me just show you how it is going to work or not. Final words and let me just show you that. So आप देख सकते हैं इसका भी आउटपुट आपको सेम मिला। जैसे ऊपर वाला हमें आउटपुट मिला था ये वाला, वैसे आपको एक लाइन में आउटपुट मिल गया। एंड दैट इज व्हाई लिस्ट कॉम्प्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ योर लूप, साइज ऑफ योर कोड। ओके, सो ये सेम मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा, सिर्फ उसको लिखा है अलग तरीके से, सिर्फ उसको लिखा है अलग तरीके से। सो वी कैन जस्ट रीड इट लाइक दिस। सो इट इज गोइंग टू बी अ लिस्ट ऑफ वर्ड for word in review dot split if that word is not in stop words,
सो दिस इज व्हाट दिस लिस्ट कॉम्प्रेशन मीन्स. सो अगर आपको ये और बढ़िया तरीके से करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल फॉर लिस्ट कॉम्प्रेंशन. ठीक है. सो लिस्ट कॉम्प्रेशन यू कैन जस्ट सर्च फॉर लिस्ट comprehension in Python. So yes, so let me just share that link with you people. तो ये आप रीड कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पाइथन प्रोग्रामर बोलना है खुद को तो ये आपको आना ही चाहिए. दैट इज कंपल्सरी. दैट इज कंपल्सरी. ये आना ही चाहिए. यू कैन जस्ट गो एंड रीड दैट आर्टिकल. ओके, जस्ट फॉलो दिस लिंक. ओके, सो ये हमने इससे भी कर दिया लाइक आपका लिस्ट कॉम्प्रेशन से. सो दिस इज व्हाट योर सेकंड स्टेप इज. नॉट सेकंड स्टेप, आई थिंक लाइक रिमूव स्टॉपवर्ड स्टेप इज. ओके, सो ये भी हमने किया. लास्ट वी आर गोइंग टू डू इज स्टेमिंग. सो फॉर स्टेमिंग पर्पस आपको लाइक इनबिल्ट स्टेमर्स है, ये आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज पोर्टर स्टेमर. बेसिकली बहुत सारे स्टेमर्स है, उसको बाद में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट मी जस्ट इंपोर्ट दैट. और एक बात मैं बताना भूल गया कि जब आप एनएलटी के इंस्टॉल करोगे, अभी देखो एनएलटी के आपके डिफॉल्ट जो भी आपका लैपटॉप है इसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट फाइंड द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू इंस्टॉल एनएलटीके. तो आई डोंट थिंक कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ये सिखाओ कि हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरी. सो ये आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ओवर हियर. बट एक चीज है, आफ्टर इंस्टॉलिंग एनएलटीके ये जो स्टॉप वर्ड्स है ना, ये आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं. So ये जो स्टॉप वर्ड्स है ना, ये ऑलरेडी मैंने मतलब ये एक ही बार करना पड़ता है डाउनलोड. जस्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग द एनएलटीके जस्ट डाउनलोड द स्टॉप वर्ड्स. सो you'll just get that information on the Google how to download. एक ही स्क्रिप्ट होता है stopwords dot download, ऐसे एक स्क्रिप्ट होता है. यू कैन जस्ट डू दैट. अदरवाइज ये आपको स्टॉपवर्ड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे. इवन इफ यू इंस्टॉल एनएलटी के स्टॉपवर्ड्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होते. ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट स्टॉपवर्ड्स डाउनलोड करने के लिए यू जस्ट गेट द स्क्रिप्ट. यू जस्ट गेट द स्क्रिप्ट टू डाउनलोड द स्टॉपवर्ड्स. या तो अगर अगर आपको चाहिए तो आई कैन जस्ट गिव यू दैट स्क्रिप्ट आल्सो. सो एनएलटीके डॉट डाउनलोड स्टॉपवर्ड्स. सो अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके पहले यू कैन जस्ट राइट एनएलटीके डॉट डाउनलोड डाउनलोड स्टॉपवर्ड्स. एंड ऑब्वियसली ये डाउनलोड करने के लिए या तो आपको एनएलटी के इंस्टॉल करने के लिए यू नीड इंटरनेट कनेक्शन. तो पहले ये करो एंड उसके बाद में विल जस्ट गेट दैट लिस्ट ओवर हियर. ओके, अभी स्टेमिंग के लिए वी नीड टू इंपोर्ट फॉर स्टेमिंग पर्पस वी नीड टू इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर. काफी सारे स्टेमर्स है, वी आर गोइंग टू यूज पोर्टर स्टेमर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय स्टेमिंग ऑपरेशन. सो एनएलटीके dot from nltk dot I think that is into stem dot mm, porter. Yes, porter. Import porter stemmer. So this is what the class we can say over here. तो इसका एक object मैं बताऊंगा ps. That is porter stemmer. That is name of object. So let me just create its object. And ये जो object है ना, that is going to help us for finding out the basic meaning of any word. तो इसको कोई भी word आप भेज दो, it is going to give us the basic meaning of word. तो what we can do is कि liked नाम का वर्ड है तो इसका बेसिक मीनिंग आप देख सकते हैं. बेसिक वर्ड जो देख सके दैट इज व्हाट लाइक इज. लाइक so happiness. So I don't know where some words are really not recognizable. लेकिन just see. Yes, happy को ऐसे लिख रहा है happiness. अगर मैंने यहाँ पे happiness ऐसे लिखा तो yes, it is going to be happy. So yes, it is not always like 100% correct, but you can just see that we can just have the basic word or base word from your this word over here. तो ऐसे हर एक वर्ड का मुझे बेस वर्ड फाइंड आउट करना है. तो ये जो फाइनल वर्ड्स है ना, इससे मैं फिर से हर एक वर्ड का बेस वर्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ. तो फिर से व्हाट वी नीड टू वी नीड टू like
राइट दिस लूप फॉर दैट पर्पस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस ये जो आपका लिस्ट कॉम्प्रेशन है, सेम आई एम गोइंग टू यूज नाउ, सेम आई एम गोइंग टू यूज, एंड इसमें ही मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने स्टॉप वर्ड भी रिमूव किया, एज वेल एज जो भी वर्ड मैं चूज करने वाला हूँ उसका स्टेमिंग वर्जन आई एम गोइंग टू अपेंड। तो ये जो वर्ड मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो इसका स्टेमिंग वर्ड मैं लिखने वाला हूँ, PS डॉट स्टेम। तो इंस्टेड ऑफ मतलब यहाँ पे दोनों चीज होते हैं, स्टॉप वर्ड्स को हम ले नहीं रहे, जो भी वर्ड्स ले रहे उनका स्टेम वर्जन, या तो इसका मतलब उसका बेस वर्ड हम ले रहे। सो आई कैन जस्ट शो यू दैट राइट नाउ। तो ये जो फाइनल वर्ड्स है, फाइनल वर्ड्स, सो कैन जस्ट सी नाउ। सो ये जो लव था, लव्ड था, उसका लव हो गया। Okay, so this is how we can just have that operation along, मतलब अगर इस लूप में अगर आपको चेंजेस करने, तो आप क्या करते, फाइनल वर्ड्स डॉट अपेंड, तो यहाँ पे अपेंड करते टाइम पे PS डॉट स्टेम ऑफ वर्ड ऐसे अपेंड करते ना, तो यू डोंट नीड टू राइट टू डिफरेंट लूप्स फॉर दैट पर्पस। स्टॉप वर्ड्स भी रिमूव करो एट अ टाइम, एंड उसी के साथ जब भी आप ये वर्ड अपेंड करो तो उस टाइम पे उसका PS डॉट स्टेम ये वर्जन अपेंड करो, सो दैट वी कैन से दैट। सो ये हो गए आपके फाइनल वर्ड्स। नाउ ये जो भी फाइनल वर्ड्स है, दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। सो बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल क्या है वो तो कल डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी आर प्रोवाइडिंग दिस फॉर बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, ये जो सेपरेट वर्ड्स है ना, इसको एज अ वन स्ट्रिंग आपको कन्वर्ट करना है। ये जो सेपरेट मतलब आपको स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे, ये जो भी सेपरेट वर्ड्स है, so I want or I expect answer like this. So how we can convert this list of words into single string like this? Yes, that is dot join, not join ta, t नहीं आएगा, सिर्फ join। तो ये जो join है ये let me just do that, ये जो join है ये हम करेंगे on the, मतलब ये दो words जो है, ये तीन word जो है, इनको हम space के basis पे join करने वाले हैं। So that is why let me just define, sorry, space dot join, and we are going to join all the words from final words list, and इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, वाओ लव प्लेस। तो ये आपका प्रोसेस वर्जन है। सो आई थिंक मैंने आपको ये प्रोसेस वर्जन यहाँ पे आपको दिखाया था। सो after all these processes you are just going to have this kind of output over here। So I think ये review अलग था वहाँ पे। So these all processes we have to do on each and every review, on each and every review। तो ये पूरे सारे जो process reviews है, that I am going to store into processed reviews। तो ये जो है ना, that I am going to keep into one list। तो ये जो हर एक रिव्यू को हम ये सारे ऑपरेशंस कर देंगे हर एक रिव्यू पे, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टोर दैट रिव्यू, मतलब ये फाइनल रिव्यू है ना, एज अ प्रोसेस रिव्यू हम स्टोर करने वाले। तो हर एक रिव्यू के ऊपर करना है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द लूप फॉर दैट। सो रिव्यू फॉर एवरी रिव्यू इन, अभी ये जो सारे रिव्यूज आपको कहाँ पे मिलेंगे, DF ऑफ रिव्यूज में मिलेंगे, राइट। ये सारे रिव्यूज आपको कहाँ पे मिलेंगे, DF ऑफ रिव्यूज में मिलेंगे। सो फॉर एवरी रिव्यू इन DF ऑफ रिव्यूज, तो ये आपका एक सीरीज ऑब्जेक्ट है। सो वी कैन जस्ट इटरेट ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट लाइक दिस। पहला ऑपरेशन जो भी आपको करना है, दैट इज रिमूविंग द अनवांटेड कैरेक्टर। सो आई थिंक दैट कोड इज ओवर हियर। सो आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू यूज दिस स्क्रिप्ट एज इट इज, बिकॉज यहाँ पे सिंगल रिव्यू था, यहाँ पे लूप में भी वो सिंगल रिव्यू आएगा। सो जस्ट ये जो है ना, ये इसको मैं बोलता हूँ लाइक message, let me call it as message। So message is equal to re dot substitute, so that is review। okay, and then after that ये जो मैसेज आया है जिसमें डॉट्स वगैरह रिमूव हुए हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो
नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डिड दैट टाइम, सो लोअरिंग किया था, लोअरिंग करने के बाद स्प्लिट किया था. सो यू कैन जस्ट सी नाउ. सो ये जो लोअर है, लेट मी जस्ट राइट डाउन डॉट लोअर हियर ओनली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे लोअर लिखा तभी भी चलेगा, बिकॉज इसका जो आउटपुट होता है, इसका आउटपुट स्ट्रिंग ही होता है. सो उसको डायरेक्टली डॉट लोअर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, उसको दोबारा फिर से नया लाइन लिखने की जरूरत नहीं. सो लोअरिंग डाउन भी किया. लोअरिंग डाउन करने के बाद वी आर गोइंग टू स्प्लिट दैट. सो लिस्ट ऑफ words, let me call it as. So list of words is equal to, yes, message डॉट क्या करेंगे, स्प्लिट. तो ये स्प्लिट है, ये डायरेक्टली. सो कौन सा ऑपरेशन हमने अभी किया, ये वाला ऑपरेशन, रिव्यू डॉट स्प्लिट. सो अभी हमारा जो आउटपुट है वो मैसेज में है ना. सो ये यहाँ पे रिव्यू हमने भेजा, ये वाला इटरेटर है. तो रिव्यू को हमने जो भी लोअर्ड फॉर्म है या तो अनवांटेड कैरेक्टर रिमूव करने का फॉर्म है, वो मैसेज में किया. एंड मैसेज डॉट स्प्लिट ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स में आया. एंड देन आफ्टर दैट वी कैन जस्ट अप्लाई दिस पर्टिकुलर लाइक स्टेप्स ओवर हियर डायरेक्टली. तो ये जो स्टेप्स है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस. सो फाइनल वर्ड्स, ये जो है ये कैसे आएगा, स्टेम्ड वर्जन ऑफ एवरी वर्ड फॉर वर्ड इन. ये रिव्यू डॉट स्प्लिट में नहीं आएंगे, या तो इसको मैं मैसेज डॉट स्प्लिट बोल सकता हूँ. सो लेट मी जस्ट डू इट एज मैसेज डॉट स्प्लिट. इफ नॉट वर्ड इन स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स, बाकी का एज इट इज. सो लेट मी जस्ट डोंट राइट दिस लाइन, ये लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे मैसेज डॉट स्प्लिट से ही हर एक वर्ड ले रहे हैं. सो दीज आर योर फाइनल वर्ड्स. एंड ये जो फाइनल वर्ड्स है, ये फाइनल वर्ड्स हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. सो दैट इज द ज्वाइन ऑपरेशन. तो ये जो ज्वाइन ऑपरेशन है, इसका आउटपुट क्या है, ये आपका प्रोसेस्ड स्ट्रिंग है. तो दैट वी आर गोइंग टू अपेंड. तो ये जो स्ट्रिंग है जो भी हाईलाइट किया, दैट इज व्हाट योर स्ट्रिंग इज. तो ये स्ट्रिंग आई एम जस्ट गोइंग टू अपेंड. तो दैट आई एम गोइंग टू append into what, processed reviews. So processed reviews एक लिस्ट है, इसमें हम अपेंड करने वाले हैं सारे प्रोसेस्ड रिव्यूज लाइक दिस. सो एक 3 स्टेटमेंट में आपका पूरा प्री प्रोसेसिंग हो जाता है. एंड देन आफ्टर दैट लेट मी जस्ट शो यू all processed reviews, process reviews. So let me just show you that all reviews. So it takes some time to process this all over here. आप देख सकते हैं, देखो पहला रिव्यू क्या है, लव वाओ लव प्लेस. दूसरा है क्रस्ट गुड. तो क्रस्ट गुड मतलब ये दूसरा जो रिव्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या था, क्रस्ट इज नॉट गुड. तो ये इज एंड नॉट दैट इज बीन रिमूव्ड एज एज स्टॉप वर्ड. तीसरा है नॉट टेस्टी एंड द टेक्सचर वाज जस्ट नस्टी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फॉर्म क्या आ गया. सो टेस्टी का जो स्टेम्ड वर्जन है, वो टेस्टी का स्टेम वर्जन उसने ऐसे लिया. सो टेस्टी, टेक्सचर, नास्टी. तो सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिए फ्रॉम द थर्ड रिव्यू. सो बेसिकली ऑब्वियसली अगर आपको ये केयरफुली देखा होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स वी मे नीड टू फेस because of some processings over here. Okay, so this is what we call it as a corpus also. Corpus मतलब basically document. Corpus मतलब document. So ये document आपका तैयार हो गया. Now we can use bag of words model directly on this particular corpus या तो processor reviews. So what is that bag of words model, and how to use that bag of words model, that stuff will discuss tomorrow. So if you have any doubt regarding this, you can ask.